राजा दे है। मैं तारकेश्वर वेस्ट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं अभी स्टूडेंट हूँ, एमटेक सेकेंड ईयर का। और बाकी मेरे को टीसा ज्वाइन हुए 4 मंथ हो गया, 4 to 5 मंथ अराउंड हो गया। और 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 मेरा उम्र अभी 26 है। एंड और मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। मैं 3 साल तक जॉब में था, मतलब 3 साल तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब किया हूँ। और बाकी मैं अभी फिलहाल स्टूडेंट हूँ और सेल्फ फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में। Raja, wonderful. I'm very happy to have you here in the meeting, and your introduction is quite impressive. But Raja, can I ask you a ticklish question? Ticklish. ओके सर। I want to know, you have been in TISA for last 4 months. So, what have you done in these 4 months? What have you achieved in these 4 months? सर बेसिकली मेरा थोड़ा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी था मेरा। मैं ठीक से मतलब एंगेज नहीं रह पाया, मतलब डेली बेसिस का कंसिस्टेंसी में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। क्योंकि और एग्ज़ाम के लिए और बाकी थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम भी था, तो इसके वजह से मैं ठीक ठाक तो नहीं पाया। बाकी मेरा ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरा थोड़ा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के वजह से मैं ठीक से ग्रो नहीं हो पाया। मतलब एक एक 4 मंथ में जो मुझे ग्रेन करना चाहिए था वो ठीक ठाक से मैं नहीं ले पाया। Acha, tell me one thing. You said something about financial constraints. You used the word financial. So I want to know, have you been asked to pay anything in TISA by anybody? नो 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 सर, नो सर। मेरा आ, मतलब आधार को इशूज था सर। और आधार इशूज था। मैं जस्ट आपको फ्रैंकली No, it's बताया okay. जो It's जो okay. मेरा No, it's बेसिकली okay. प्रॉब्लम था। No, और actually, एग्जामिनेशन और फिजिकल I just इलनेस भी wanted था। to, confirm and bring out this issue that in TISA, there's no fees for anything. For example, in this Zoom, you नहीं are नहीं नहीं, नो नो सर, participating नो सर। मैं freely. आपको ना ना नहीं, मैं आपको हाँ, सर जो मेरा प्रॉब्लम था, जो 4 महीने में हाँ, मैं हाँ. अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक ठाक है, से ठीक है. मेरा गॉट मतलब इट, गॉट लैक ऑफ इट, गॉट कंसिस्टेंसी इट. का जो, हाँ, लैक ठीक ऑफ है, मगर हाँ, कंसिस्टेंसी बट का आई जो वांट टू प्रॉब्लम आस्क यू, था। नहीं ठीक है राजा, आई अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. In these 4 months, have you ever phoned a stranger and tried a little gentle stammering like many other people in TISA are doing? Many people in हम्म TISA are not moving हम्म mountains. They're doing only, very simple हम्म thing like twice a week or thrice a week, they get up in the morning and they phone a stranger and they try a little हाँ gentle stammering as हाँ। I'm doing now. So, have you done this? And if you have done it, have you shared the call यस सर, आई record? डन इट। हाँ, यस सर, आई डन इट, बट आई कॉल रिकॉर्ड एंड आई और मैं जो टेलीग्राम ग्रुप से भी बहुत स्ट्रेंजर से मैंने बात किया। और But have you ever shared the फिजिकली call record? Have you ever shared the call record? कॉल रिकॉर्ड, हाँ हाँ। मैं 8 से 10 कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और नहीं, बट बाकी का शेयर किया मेरा। है. But have you shared it with anyone in Telegram group? नो 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 सर, नो। Then it is almost like it's almost like it's almost like studying at home, but never appearing for exams. How will you know where do you stand? How will you know what you need to improve? सर मैं अभी फिर से मतलब कंसिस्टेंसी से मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ बस। और Hmm. मेरे को Hmm. बोला जो 4 महीने में Hmm. बहुत 3 4 Hmm. जेन्युइनली प्रॉब्लम था, No, no, तो it's okay. इस It's okay. वजह से। It's okay. No, no, it's no big deal. No big deal. I mean, I know हम्म, many people who spend, 4 years in TISA, but
हम्म। but don't do very many things because they find it very challenging. मैं So they टीसा में सर so they मेरा don't so they don't try wait. So they don't try anything challenging. And after 4 years, when there's a campus interview, then they do not get selected, and then they feel very bad. And then they say, I've been in TISA for 4 years. What have I gained? I've gained nothing. So it's almost like going to college but not studying. What do you think will be happen in the exams? I'm I'm not saying that यस सर। that you have to immediately start doing something, but I'm just saying that even in these 4 months or even from today, you can start something very इमीडिएटली simple, कंसिस्टेंसी के साथ। very simple. I mean, I'm not even talking about high level consistency and hard work. I'm not talking about those things. I'm talking about हम्म। something very simple, like making one phone call to a stranger once a week. हम्म। Once a week, if you if you phone a stranger and you purposely stammer in that call, I can't tell you, it will bring a radical change in your mindset. Stammering is all about mindset, and it can be changed by one interaction. So I'm not talking about high level consistency. I'm not asking you to conduct a SHG meeting every Sunday. I'm not asking you to give हम्म। 1 hour every day. I'm not asking you to read PDF files, watch videos. No, just make one stranger call and purposely stammer, because that is the thing which will convince your subconscious mind that stammering is not a big deal, that stammering is not stopping you, that to strangers it doesn't matter whether you stammer or whether you speak fluently. These are kind of thought experiments which you can do on your own, and it doesn't take too much time. Anyway, I mean, it's entirely besides the point. I just wanted to find out if you have gained something in these 4 months or not. Anyway, so now let me invite other people also, because some other people are here, like Durgesh. I don't know why I want to know more about Durgesh. Durgesh, please tell us more about yourself. Durgesh. And if Durgesh is not ready, then I will invite Raghuvir Thakur, because Raghuvir Thakur is making a lot of videos and sharing it with TISA. Raghuvir, you can go on. ओके सर। सर मुझे क्या बताना है, मतलब क्या बोलना है? आपने अभी 4 वीडियो बनाए हैं मॉड्यूल 1 में, और मैंने उन सबको देखा है, फीडबैक भी दिया है। तो ये 4 वीडियो बनाने में आपको कुछ इमोशनल चैलेंज महसूस हुआ, मुश्किल लगा, आसान था? कैसा अनुभव रहा ये? सर चैलेंज तो मतलब मुझे नहीं लगा, हम्म। लेकिन हाँ मैंने उस चीज को एंजॉय किया। मैंने जब अच्छा। LIG चौराहे पर जो इंदौर के स्वच्छता वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद काफी अंदर से कॉन्फिडेंस जैसा फील हो रहा था, और मैं ज्यादा ओपन अप हुआ अपने विचारों के बारे में। मैं ज्यादा बोलने लगा चीजों को। तो वेरी गुड, हाँ, ये परफेक्ट। मुझे उस वीडियो के बाद फील हुआ था। पहले वाला जो हम्म। इंट्रोडक्शन था, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन था मुझे। आपने क्या कभी पहले भी अपना वीडियो इंट्रोडक्शन बनाया था? पहले बनाया था? मतलब जो पहला वाला टास्क था इंट्रोडक्शन, हाँ, या हाँ। दूसरा वाला, वहां हाँ, पर हाँ। मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो एक वाला टास्क था कि जिस पे आपको किसी विषय पर बोलना है, हाँ, हाँ। वो मतलब बहुत सारा क्राउड वाला प्लेस हो, हाँ, उस हाँ, हाँ। टास्क के बाद में काफी कॉन्फिडेंस मुझे आया। अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे अपना वीडियो खुद बनाना, शूट करना और उसको देखना, क्या आपने कभी पहले ऐसा किया था? 1 साल पहले, 2 साल पहले कभी किया था ऐसा अपने आप, अपने बलबूते? सर मैंने अपने रूम में किया था, और, कब? मेरे दो मामा के लड़के थे, उनके साथ किया था हाँ। मैंने। बाकी ये सब क्या उस समय पब्लिक में कभी नहीं किया। क्या उस अच्छा, ठीक है। आपने जब मामा के लड़कों के साथ ये इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था, तब क्या आप तीसा से जुड़े हुए थे? नहीं सर, वो था 2018 का दिसंबर, तब मैं टीसा से नहीं जुड़ा था, वही अच्छा। लास्ट वीडियो। अच्छा, क्या उसके पहले आपने सिलीगुड़ी वर्कशॉप अटेंड करी थी? हाँ सर, 2020, 14, 15, 16 फरवरी शायद, जितना मुझे पता है। ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सेल्फ हेल्प के नाम पे हम लोग कोई रॉकेट साइंस वाले काम नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी
और लोग अपने आप ये बातें कभी सोच नहीं पाते कि मुझे अपना वीडियो बना के खुद देखना चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं कि मैंने कभी अपना वीडियो नहीं बनाया था, मूक में ज्वाइन करने के बाद या टीओपीजी में आने के बाद या तीसरा में जुड़ने के बाद मैंने पहली बार अपना वीडियो बनाया। तो अन्य शब्दों में मैं कहना ही चाहता हूँ कि तीसरा इज ऑफरिंग यू सम वेरी सिंपल इंटरवेंशंस which are not very radical. But the thing is, we rarely think about these things on our own. तो सर जब तीसरा में हाँ, जब तीसरा में आते हैं, आप ये वीडियो बनाते हैं और बनाकर देखते हैं, तो पहली बार आप ये समझना शुरू करते हैं कि मेरी स्टैमरिंग देखने में ऐसी लगती है, बहुत बुरी नहीं लगती है, मेरी बात मोटा मोटा समझ में आ जाती है, या मुझे किन चीज़ों के ऊपर और काम करना है। सो दीज आर वेरी गुड वेज ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो आप अपने वीडियो खुद देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ सर, अभी आप जब बता रहे थे तब मुझे ये बात ध्यान आई। हम्म। अगस्त, मतलब 2 साल का मैंने कोचिंग किया था। तो हाँ। मतलब अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के, तो वो हम्म। अगस्त या सितंबर में एंड हुआ था, तो मुझे ज़्यादा फ्री टाइम मिला था। तो हम्म। मैं कॉल करता था हम्म। जिनके साथ बात करने मुझे अनकंफर्टेबल होता था। जैसे एक टेलर थे, तो उनको मैंने कॉल किया था, तो मैंने फ़ोन सामने रख करके मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो ऐसे बहुत अच्छा। सारे मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। हाँ। 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 और इनको आप अपने रिकॉर्डिंग को आप खुद दोबारा देखते हैं? इन वीडियोस को आपने दोबारा देखा जो आपने 4 वीडियो बनाए? हाँ सर, देखिए सर। इनको जब देखा तो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया? सर जो मतलब एक जो सबसे बड़ा वीडियो था उसको मैंने 4-5 बार, 5-6 बार उसको मैंने देखा। तो मुझे लगा कि शायद, अब वो मुझे पता नहीं मेरी ओवर थिंकिंग है क्या है, कि जो पॉज के बाद जो पहला वर्ड आता है उस पर मैं थोड़ा सा फोर्स दे रहा हूँ, या क्या पता ये मेरा बोलने का तरीका है ये। जैसे मैं एक जगह बोल रहा था कि अ, मुझे ये करना है, फिर पॉज, मार्केट, तो मैंने कि ऐसा, मतलब फोर्स लग रहा था पहले वर्ड पर। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ गया कि मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। और तो हम्म। अगली बार जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आप देखना कि आप फोर्स कम लगाएं। मतलब वीडियो देखने का मतलब यही है, टू फाइंड आउट व्हाट आर द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हाउ टू चेंज those habits or behaviors in the future video. I've got only one request now. Instead of going in the module 2, go to module 3 and do lot of stammering interviews. At least 4-5 तो कर डालो आप, अलग अलग लोगों से, कुछ अपनी उम्र के लोगों से, कुछ अपनी कोई पुरानी क्लास टीचर हो आपकी जो आपको पढ़ाती थी हाई स्कूल में, वो आपसे, अगर आप उनसे आप बात कर सके तो उनसे आप इंटरव्यू कर लेना। ठीक है? So do a lot of interview with a variety of people, some older people, some younger people, some people of same age, people of different gender। ये करिएगा और इसको शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड न कर पाए तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लिएगा। अगर मान लीजिए सामने वाला बोले कि प्लीज वीडियो रिकॉर्ड मत करो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोन का सिर्फ ऑडियो ऑन करके जेब में डाल लेना, अपना ऑडियो ऑन कर लेना, अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना बस। क्योंकि बेसिकली आप सुनना चाहते हो कि आप, आपकी बातचीत कन्वर्सेशन में कैसी है। एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोग बहुत अच्छी पॉजिंग करते हैं जब वो कोई कविता या शायरी सुना रहे हैं, लेकिन वही पॉजिंग फोन पे किसी आदमी के साथ करना बहुत मुश्किल पाते हैं। इसीलिए डिफरेंट सिचुएशंस में ये सब चीजें करना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच रघुवीर। लेट मी नाउ इनवाइट सुनील चावन। सुनील चावन इज हियर। हाँ, सुनील चावन। सुनील, बताइए कैसे हैं आप? वर्कशॉप के बाद कैसा, आपका स्पीच कैसी चल रही है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? सुनील, सुनील चौहान। ओके, तो सुनील को भी टाइम लग रहा है। इन द मीन टाइम लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू अपूर्वा। अपूर्वा, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली। Okay, sir. So, first of all, good afternoon to all of you. And मेरा नाम है अपूर्वा दास और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ।
और मेरे को टीसा से जुड़े हुए करीब 4 महीने हो चुके हैं। और मैं थोड़ा बहुत जो सारे टेक्निक मेरे को पता है, मैं सारे के सारे टेक्निक को यूज करके मैं बोलने की ट्राई करता हूँ सर। इन 4 महीनों में क्या क्या किया है आपने तीसा में? Like, have you done anything challenging, like talking to strangers? हाँ जी सर। तो जो इन 4 महीने में मैंने एक चीज ट्राई किया है कि मैं जो सारे ऑनलाइन पे मीटिंग को टीसा कंडक्ट करता है, मैं मैक्सिमम मीटिंग में ज्वाइन कर सकूं। और एक मेरा जो स्पीच है, मैं जो सारी टेक्निक मैंने सीखा है, मैंने थोड़ा सा हर एक टेक्निक के ऊपर फोकस करके मैं मेरी बातों को रखने की ट्राई करूं, ताकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जो मेरा बातों के जो मेरा बातों के ऊपर जो मेरा पकड़ है वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से बन पाए। Thank और you so much, Apurva. Hmm. Any so हम्म, what are big differences do you see in yourself after joining TISA? हाँ जी सर। जो है सारे कि मेरे को टीसा से ज्वाइन करने से पहले जो स्टैमरिंग ठीक होता है, म- म- मेरे माइंड के अंदर था कि जो ये प्रॉब्लम है, अ, मतलब ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम ठीक होता है, लेकिन मतलब बहुत कुछ टेक्निक के बारे में पता नहीं था। तो मैं जैसे ही टीसा के अंदर ज्वाइन किया, तो मेरे को बहुत सारे टेक्निक के बारे में पता चला, जैसे कि पॉजिंग, हैंड मूवमेंट, माउथ को स्टेच करना हो गया। तो ठीक। मेरे को अपूर्वा, जी। अपूर्वा, मुझे टेक्निक हम्म से ज्यादा आप ये बताना कि आपकी हम्म साइकोलॉजी में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? इतने सारे हकलाने वालों को एक जगह पे एक मीटिंग में मिलने के बाद कुछ आपके विचारों में हम्म। बदलाव आया? हाँ एकदम। तो जो है कि मैं बहुत ज्यादा स्टैमरिंग के ऊपर मैं बहुत ज्यादा अ, सोचता था कि मैं इसको कैसे करके ठीक करूं। और मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करता था। और जैसे ही मैं टी से के अंदर ज्वाइन किया, म- मेरे को बहुत सारे मतलब कैसे करके जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, कि जो ये प्रॉब्लम है, ये मेनली हमारा जो मतलब एकदम माइंड का प्रॉब्लम है। तो मेरे को बहुत ज्यादा एक साइकोलॉजी में भी चेंज आया है। थैंक यू सो मच अपूर्वा। ये बहुत से लोगों ने ये बात कही है। यस सर, मैनी थैंक यू। पीपल हैव सेड दिस दैट आफ्टर ज्वाइनिंग TISA, when they saw so many stammerers on one platform, they began to feel better about themselves and they began to see that they are not alone in this world. Thank you so much, Apurva. Let me invite Afzal. Afzal is he coordinates our Delhi group, and he's a very old member of TISA. And so, Afzal, are you here? Do you want to share something? Afzal, can you hear me? Acha, I think Afzal is not available. Okay. So now let me invite um, uh, Manjit Bajwa. Manjit Bajwa, briefly tell us what you have done in TISA. अपना परिचय मत देना, आप ये बताओ कि आपने किया क्या है। मैंने परिचय बहुत सुन लिया लोगों का। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं तीसा में। हर आदमी कहता है कि मैं 6 महीने से तीसा में हूँ, मैं 10 साल से तीसा में हूँ, मगर एंड ऑफ द डे बिग क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू अचीव्ड? हैज इट बेनिफिटेड यू और नॉट? सो मंजीत बाजवा, प्लीज टेल मी हाँ जी सर। व्हाट हैव यू अचीव्ड इन तीसा? हाँ सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बुलाना चाहता हूँ। और थैंक यू मंजीत। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर मेरी आपसे फर्स्ट बार बात हो रही है। तो सर मैं टीसा से जुड़े हुए मुझको कम से कम 7 महीने हो गए हैं। और मैं एक आर्मी में जॉब करता हूँ। और सर
जब से मैंने सर ये टीसा ज्वाइन किया हुआ है, मैंने यूट्यूब में बहुत देखा था कि पॉजिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, प्रॉन्ग यूज़ करना चाहिए, ब्रीथिंग करनी चाहिए, लेकिन सुना था, लेकिन मुझको ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी आती थी। और जब से मैंने ये टीसा ज्वाइन किया हुआ है, तब से जो जो इसमें जो पुराने मेंबर थे, उन्होंने मुझको सिखाया कि ये टेक्निक कैसे अपने यूज़ करनी है और ये क्या अपने कैसे करनी है। अभी मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझको इससे ये सीखने के से अपना मिला है कि हकलाओ लेकिन प्यार से। और जब भी मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, तो तब मैं ये अपने माइंड में ले आता हूँ, हकलाओ लेकिन प्यार से। तो तब ये मुझको प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो इसका एक मुझको ये बहुत अपना फायदा अपना अपना ये हुआ है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक अभी है। मैं, हाँ जी सर, मैं अभी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे हाँ, टेक्निक, ये अपनी टेक्निक सीखने के लिए सर। थैंक यू जी मंजीत। सर। आप पॉजिंग भी यूज कर लेंगे ना, तो अकेले पॉजिंग ही आपका सारी मुश्किलें दूर कर देगी। अगर आप थोड़ा सा पॉज करना सीख लें, हर 2-3 हाँ जी, लफ्जों के बाद थोड़ा सा पॉज लेना, हाँ सांस लेना, फिर बोलना आराम से, ये भी कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपको फायदा हो रहा है तीसरे में। थैंक यू सो मच मंजीत। एंड नाउ हाँ जी। लेट मी नाउ इनवाइट सुनील चावन। सुनील, कैन यू ओके हियर सर। मी? सुनील, कैन यू हियर मी? ओके, प्रवीण आचार्य। Sir, I can hear you. अच्छा, हाँ हाँ सुनील, बोलिए सुनील, कैसे चल रहा है? आप Yes, sir. वर्कशॉप How के are you, बाद sir? कैसा? I'm fine. आई एम फाइन। वर्कशॉप के बाद कैसा चल रहा है आपका काम धाम, स्पीच कम्युनिकेशन? वर्कशॉप के बाद सर हमें जो पहले में मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा पहले इंट्रोवर्ट था, तो अभी कि क्या था कि एक फेज था कि मुझे कहीं पे मैं मेरी स्टैमरिंग की वजह से मैं खुद को लो समझता था, या फिर कि कहीं पे स्पीकअप हो पाना वो मुझे लो लगता था। लेकिन अभी वो एक मेरा स्पीच का अलग पार्ट है और मेरा इंटेलेक्चुअल अलग पार्ट है, तो उसको मुझे वो कंबाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है, तो वेदर इट बी बिल्कुल फास्ट और इट बी स्लो, लेकिन मुझे जो मेरा पॉइंट रखना है वो मैं अभी करता हूँ। तो वो बेझिझक मैं बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा है। और जो भी है मैं हमारे स्टैमिना को लेके बोलता हूँ कि अगर हाँ मतलब मेरा पॉइंट हो और मैंने बोला ही नहीं, तो फिर हाँ मेरे सोचने का भी कुछ फायदा नहीं हो। तो वो हाँ मेरा एकदम सही मैसेज कहा, करने एकदम होना सही। चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा मैसेज करने होना चाहिए, और उसकी वजह बिल्कुल। से जो भी मुझे करना पड़े, जो भी टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ कि जो आपने सिखाया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा मैं कर पाऊँ। अगर कुछ मिस हो रहा है तो फिर उसको मैं एक बार रिवर्ट करके, या फिर हमें उसको एक बार गेज कर पाऊँ कि मैं कहाँ पे हमें हमें गलत हो रहा हूँ। और ये भी हुआ था कि प्रैक्टिस करना चाहिए, वो एक ये था कि हम करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन कभी किया नहीं था। लेकिन जो वर्कशॉप में हमने किया कि हमने कंटिन्यूअसली उस पर ही फोकस किया, तो फिर उसका वो एक तरीके से आदत हो गई हमारी कि फिर वहां से आके भी मैं हमें प्रैक्टिस जारी रखी, और मतलब फायदा तो बहुत है बहुत इसका। बढ़िया, वेरी गुड सुनील, बड़ी खुशी भी आपकी बात सुन के। सुनील, क्या आप किसी अजनबी को फोन मिलाते हैं दूसरे तीसरे दिन, ये सर राजनवी को, ये और सर उसको आप फोन तो रिकॉर्ड करता हूँ करते सर। हैं? उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, कॉल रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली ऑन रहता है सर मेरा, हाँ ठीक है, तो हर एक हमें कॉल रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। और कॉल रिकॉर्ड को आप दोबारा सुनते हैं? सुनता सर मैं रात में हूँ, या फिर वीकडेज में एक बार सुनते हूँ मैं इसको। ठीक है ठीक है, बस बस। अगर यस हफ्ते सर। में आप 2 बार भी सुन लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसको यस सर। सुनने से आपको अपने आप ही आपकी स्पीच में बदलाव आएगा। और आपने ये बहुत अच्छी यस बात सर। कही कि हकला के ही सही, मगर अगर आप हाँ। अपनी बात कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है, इसको मैं सफलता मानता हूँ। क्योंकि अगर यस हमने सर। जो सोचा है, वो अगर काम की चीज है, तो हमें दूसरों को जरूर बताना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हम बताएं। तो ये दिस इज अ बिग इम्प्रूवमेंट, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। हकला के भी बोलना बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर हकलाने वाले यस सर। इतना भी कर लेना कि वो बोलना शुरू कर दें मुंह बंद रखने के बजाय, हम्म। तो इट्स ए ह्यूज 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 इम्प्रूवमेंट। एंड और दुनिया यस हमारे सर। विचारों को अप्रिशिएट करती है अगर हम उसको शेयर करें तो। हम ही शेयर नहीं करेंगे तो क्या फिर कौन अप्रिशिएट करेगा उसको?
तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, Right, sir. बट कीप ऑन फोर्सिंग अहेड, आगे चलते रहना है, Yes, ठीक है। sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Sure, sir. लेट मी नाउ इनवाइट रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, उसके बाद मैं दुर्गेश के पास आऊंगा। रुद्र प्रताप बोलिए। अच्छा ओके दुर्गेश, आप पूछिए सब अपना सवाल। उसके बाद मैं सुशील कुमार के पास आ रहा हूँ। सुशील कुमार मेरे पुराने दोस्त हैं, गोरखपुर से हैं। हेलो हाँ सर। हाँ बोलिए दुर्गेश। हाँ सर, माय नेम इज दुर्गे संतोष बेनकर। आई एम हाँ आप तो फ्रॉम जाने नेरुल नवी जाने मुंबई। पहचाने लग रहे हो, आप तो वर्कशॉप में आए आई थे ना, मुंबई वर्कशॉप में। यस सर। हाँ, हाँ ये हाँ हाँ सर, हाँ अब वनवाड़ी में। याद आ गया। हाँ बनबाड़ी में यस सर, यस मुलाकात हुई सर, थी। यस सर, हाँ यस बताइए। सर। हाँ सर, मैंने मतलब टेक्निक्स यूज करने का मतलब बहुत ये किया, मतलब ट्राई हम्म, किया मैंने। हाँ तो क्या हुआ, मेरे मेरे मतलब जॉब की वजह से ना, मतलब मैं हम्म, उसको ज्यादा टाइम मतलब टाइम नहीं मतलब दे पा हम्म, रहा हूँ, मतलब हम्म, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं ठीक अभी है। यही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं ज्यादा उसका यूज करूँ, टेक्निक का, मतलब वो वॉलंटियर्स टाइमिंग हुआ, ठीक है। बाउंसिंग हुआ। ठीक है। अभी दुर्गेश, समझ। दुर्गेश मैं एक बात कहना चाहता यस हूँ। सर। एक बात मैं कहना हाँ। चाहता हूँ। आप यस। टेक्निक प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, बहुत ज़्यादा समय चाहिए भी नहीं। आप सिर्फ इतना करिए यस सर। यस। कि हफ्ते में यस 3 दिन सुबह उठ के किसी अजनबी को 2 मिनट के लिए फोन कर लो, और उसमें थोड़ा सा सर। जानबूझ के जेंटली हकला लो। ओके। अखबारों में विज्ञापन आते रहते हैं, उन्हीं विज्ञापनों पे कोई नंबर लो और बोलो यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी, ये 2 BHK हाउस कहाँ पे है, इस मकान का किराया कितना है, भाई इतना पूछ के यस फोन कर सर। तो बस। इसमें कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट। और वो भी मैं कह रहा हूँ हफ्ते में सिर्फ तीन ज्यादा दिन नहीं, करो, ज्यादा। ज्यादा नहीं लगेगा भाई, दो मिनट, 3 दिन दो करना तीन काफी मिनट। है यस। बस। ठीक है तो इसको ट्राई यस। करिएगा। ओके नाउ लेट मी यस इनवाइट सर। यस। सुशील कुमार चौरसिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सुशील कुमार चौरसिया, आपका अपडेट क्या है सुशील? हरिबरपुर से लौटने के बाद आपने कौन सा मैदान मारा? एक तो मुझे मालूम है कि आपने आपने एक जगह स्पीच दी थी 26 जनवरी की, पता नहीं कौन सी। सुशील कुमार हाँ बोलिए सुशील। जी। हाँ सर, बिल्कुल। जी सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपने कौन कौन से मैदान मारे मुझे ये बताओ, कौन कौन से बड़े काम सर, किए, मैदान तो मैंने चैलेंजिंग काम कौन से किया आपने? चैलेंजिंग काम सर, अब डेली बेसिस पे मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ, अननोन अच्छा नंबर्स पे लोगों से बातें कर रहा हूँ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर रहा बहुत हूँ। बढ़िया। और हाँ पहले इससे मैं भागता था, बट अब मैं यही कर हाँ। रहा हूँ। दूसरी बात ये, जो भी मीटिंग्स होती शाबाश। हैं तीसरा ग्रुप में, हाँ उसको ज्वाइन करना और उसमें बोलने की कोशिश करना, चीज़ों के लोगों से बातें करना, और मीटिंग को होस्ट भी मैंने किया है कई बार, एक दो बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी सो गुड। ये कुछ चीज़ें हैं सर, मैं जो कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। हाँ अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या किया? कभी अम, कभी आपने स्टैमरिंग के बारे में अजनबियों से बात करी खुल के किसी पार्क में, या किसी अजनबी से कभी बात करी कि नहीं सर, अभी स्टैमरिंग? तक मैंने बात नहीं की। अच्छा स्टैमरिंग के बारे में अगर बात करना, मुझे मालूम है आप हकलाते नहीं हो। आ, अच्छा। मगर मगर फिर भी हकलाने के बारे में बात करना, इससे क्या होगा, आपके अंदर की शर्म और डर दूर हो जाएगा। बस बिल्कुल इतनी सी सर। बात है। अच्छा आपने 26 जनवरी हाँ। पे कोई भाषण दिया था, है ना? हाँ सर, मैं, हाँ सर, कॉलेज में। अच्छा अच्छा वो कैसा रहा? सर अच्छा चैलेंजिंग था, रहा। बट चैलेंज, हाँ अच्छा था, चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, फेस किया, हो गई अच्छा चीज़ें। क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड नहीं हाँ, किया? रिकॉर्ड किया सर, किया। वीडियो शूट किया था अच्छा मैंने। अच्छा हाँ अच्छा सर। उसको आपने, अच्छा हाँ हाँ। हाँ हाँ आपने शेयर भी किया था बिल्कुल। तो अच्छा ये आप जो कॉल करते हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग, वो उन कॉलों को हम्म। कभी आप रिकॉर्ड करते हैं? डेली रिकॉर्ड करता हूँ सर, मुझे कॉल रिकॉर्ड करना पड़ता है सुनने के लिए अच्छा कि मैं क्या और मिस्टेक कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। अच्छा जी। अच्छा उसको आप सुनते भी हैं? तो हाँ। सुनने से आपको अब तक क्या अपनी क्या कमी पकड़ में आई, क्या लगा कि कमी मुझे सर, इसके ऊपर काम करना है? ठीक है, एक ही कमी सर है, जो आपने भी मुझे कई हम्म, बार बताई है, अब हम्म, वहाँ पे, कि हम्म, हर वर्ड को धीरे से प्रोनाउंस करना है, बहुत फास्ट नहीं। अगर हम फास्ट हाँ बोलेंगे तो वो समझ में नहीं
इनकी हाँ, एक यही ठीक कमी कह सर रहे थी, और अभी मैं उस पर काम कर ठीक रहा कह हूँ रहे उस पर। इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुशील। और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? सर बस वही कि तीसरा महीने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं लोगों से, आपसे सर। थैंक यू इस बारे में कि मैंने वो किताब पढ़ी है आपकी, कि आपसे मैं बात हाँ किया, मिलने भी गया। हाँ सो हाँ थैंक यू टीसा कि मुझे इतना करीज देने के लिए, कि कोई हाँ नई बात नहीं है, ये होती हैं, ये सबके साथ होती हैं ये। हाँ मैं भी हूँ, फेस करूंगा चीज़ों को, आगे हाँ बढ़ूंगा। दैट्स ऑल सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इसमें तीसरा का योगदान तो है, मगर उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने हिम्मत करके आपने कदम आगे बढ़ाया है। वरना जैसे मैं पहले कह रहा था, तीसरा में कई लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्योंकि कोई कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हम्म। तो कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो डरते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और इसलिए उनको कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने तीसरा में आने के बाद मीटिंग अटेंड करी है, मीटिंग होस्ट करी हैं। ये सब आपकी अपनी पहल, आपकी अपनी मेहनत है, और इसीलिए आपके अंदर एक बदलाव आया है डेफिनेटली। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे और आप ही की तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे। डर तो सभी को लगता है, डर किसको नहीं लगता, लेकिन फिर भी कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच सुशील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू हाँ, सो मच। ओके। थैंक यू। प्रवीण आचार्य, प्रवीण आचार्य अगर सुन रहे हैं तो अपना परिचय दें, या कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल गो Second. टू आई विल गो टू Hi sir, hi Sachin sir. How are you sir? हाँ, आई एम फाइन प्रवीण। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Yeah, yeah. My name is Praveen Acharya. I belongs to Karnataka. I stay in Bengaluru. Actually, after a long time, I just yeah like attending the meeting because of my personal issues like going on, and yeah. I joined TISA, like 8 months ago, and before that, I was so nervous about my stammering issues. I have severe issues in the stammering because I myself I like isolate myself, and I was an introvert. So after joining TISA, I accepted my stammering problem. Then like as I accepted my stammering issue, then it like in my mind that I just free become free, and I able to talk even though I stammer, I able to talk with others. And after I used to attend like Bangalore SSG meetings regularly, and recently 4 to 5 weeks I couldn't able to attend, and because of that I able to got my new job. I also got job offer also, but I denied that offer because of this like salary like constraint. And before that, I was trying, 6 years I was trying the job, but I couldn't able to crack the interview because of my stammering issue. And because of this like essentially like meeting all those things, I able to crack my interview. And yeah, I like thanks to TISA for that. Yeah, that's all about myself. Thank you, Sachin sir, for वंडरफुल giving वंडरफुल opportunity. Yeah. वंडरफुल प्रवीण, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट ए जॉब नाउ। व्हेन डिड Uh, यू अटेंड Bangalore SCG लास्ट? Last, I think 4 or 5 weeks ago, because I used to travel native place every weekend because ओके I was planning to like renovate my house. And last week, ओके puja has happened. So next week onwards, I'll be like regular to the SHG meeting. Yeah, because of that, I ओके used to travel every weekend. My native place is in Mangalore, Udupi, and I'm staying ओके in Bengaluru. So yeah, ओके that's what. Yeah, yeah, वंडरफul Praveen. Praveen, I just want yeah. to ask Thank one you. thing. Have you ever Yeah. recorded your own have you ever recorded your own video and seen it? No, sir. No, no, sir. No, you I you never. should do that. Yeah. You should do that. Yes, I'll do Why? that. Yeah, yeah. Because you'll be able to work on your body language when we talk. How do Okay. we move our head? How do we use our eyes? All this you can see when you record a Okay. video, and you can change that. Okay. Okay. People say people Yeah. say that body language is 80% of communication. Okay. More than that, Okay, sir. how I we look, understand. how we look into Okay. people's eyes, how we whether we squeeze our eyes tight shut, or the face, the kind of face which we make, whether we smile or not, whether we look into people's eyes or not. All these things are very important, and all this can be improved
by Okay. recording your video while Mhm. talking to other people and then looking at the video. So try that. And Okay. SSG, Okay. Bengaluru Oh, SSG Sachin is sir, very, actually, you yeah, can sure, sure. request, And you Sachin can sir, I request just, anybody. Go on. Yeah. yeah, sir, actually, I know 2 times my USA visa got like rejected, and and then like afterwards I didn't apply. So next this month I'm going to apply. I think probably on after 6 or 8 months I'll be having one more like visa interview in like Delhi or like Mumbai. So this time I have to clear the interview. So I have to I will like regular to the like SSG meetings. Like I have to practice a lot. I need your support, sir. Actually, you need your own support. Yeah, yeah, yeah. Okay. What I'm trying to say is this, that just make Yeah. up your mind that you will do at least 10 mock interviews before visa Okay. interview. And doing Okay. mock Okay. interviews is not difficult. You can, there are many good people in Bengaluru SCG, like Yeah. Dr. Okay. Raju, Dinesh Bhai. All these are Yes. very Yes. senior people. If you tell them that I've got a interview coming up, please take a Okay. mock interview. They can organize a Okay. mock interview for you. And Yes. and Okay. when they organize a mock interview, record the whole interview and Okay. look at the recording yourself at least Okay. 2 times. Okay. You'll Okay. immediately understand what you need to change. Yeah. Okay. Okay. Right Definitely, I'll now, do it. you're speaking fine. Everything is fine, but you can Okay. still improve. You can improve a Yes. lot of things. Yes. Okay. So Sure. thank you so Thank. much. Thank you so much, Praveen. Take care Thank and you. all the best from our side. Hope to see you in America someday. Thank you so much, sir. Thank you, Praveen. Thank you. Over to Rudra Pratap Singh. Rudra Pratap, introduce yourself briefly and tell us what big things have you done in TISA? तो नमस्ते सर जी। तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में जयपुर के कॉलेज से। अभी 3rd ईयर में हूँ और मेरी एज 20 साल है और टीसा से जुड़े हुए मेरे को 10 दिन हो चुके हैं। और टीसा में आने के बाद मैंने सबसे बड़ी चीज तो की थी कि जो मैंने टीसा की फर्स्ट एसएचजी मीटिंग अटेंड की थी इस संडे को नहीं, इससे भी पिछले क्या संडे को। बात है, क्या बात है, मजा आ गया। एसएचजी तो मीटिंग बहुत वहाँ बड़ी के चीज है। हाँ हाँ बहुत मजा आया मेरे को। अच्छा। तो वहां पे हम गए, जो वहाँ के जो मेंबर थे आदित्य जी, हाँ, मैं उनसे हाँ, मिला तो उन्होंने कहा आओ, तो मैंने कहा चलो भाई। फिर वो मेरे को मेट्रो में लेके गए थे, तो मेट्रो में हम गए। उन्होंने कहा स्पीच दो, अच्छा, फिर मैंने उनको अच्छा, कहा मैं स्पीच दे दूंगा पर मेरे को पता नहीं कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बार अच्छा, फर्स्ट आप स्पीच दीजिए फिर मैं दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने स्पीच दी, फिर उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, तो ये मेरे हाँ, मित्र है रुद्र जी, हाँ, ये इनकी हाँ, फर्स्ट मीटिंग है। तो हाँ, फिर ऐसे वहां पे मैं सिर्फ स्टेमरिंग के बारे में बात की कि कैसे हाँ, अगर आपको कोई स्टेमर पर्सन दिखे तो उसको थोड़ा हाँ, रिलैक्स कीजिए, कि अगर वो ज्यादा हगड़ाए तो उसको कहिए कि थोड़ा धीरे से बात कीजिए, लंबी सी सांस लीजिए, जिससे सामने वाला कंफर्ट महसूस करे, उस पर हंसे ना। तो ये पूरा मैसेज हमने दिया था, तो काफी मजा आया। मतलब मैंने मेट्रो में 4 बार स्पीच दी थी अलग अलग कोच में, और वहां पे लोगों ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया था कि आपको पता नहीं आप में इतना कॉन्फिडेंस है, बस आपको उसको रियलाइज हाँ, करने की जरूरत है। बिल्कुल तो बिल्कुल काफी बिल्कुल मजा एकदम आया। सही। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेट्रो एक्टिविटी आप और कई बार करना, हो सके हाँ तो महीने में हाँ एक बार जरूर करेंगे। करना। आप ये पाएंगे कि आपका हाँ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी, आप ऊंचा बोलना सीख लेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी आपने करी, बहुत बढ़िया, वेरी नहीं, गुड इस रुद्र प्रताप। इस आप इस संडे को भी इस संडे को भी ऐसे जी, तो मैं तो चाहूंगा कि अगर और कोई मेंबर आएंगे तो मैं उनको भी मेट्रो में लेके जाऊंगा कि आओ। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग बिल्कुल में थोड़ा बिल्कुल। सा होता है कि नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, एक बार बोलना जब हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर तो लगता है कि हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, 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 बढ़िया बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी आपको तीसरा में आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, मगर 10 दिन में आपने 10 साल वाला काम कर लिया है, मैं यकीन से कह थैंक यू सो सकता हूँ। मच सर। क्योंकि मेट्रो में जाके हगलाने के बारे में बात करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, कलेजा। और वो आपने साबित कर दिया है, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, आई और एम सो वहां पे हैप्पी।
लोगों के भी काफी अच्छे फीडबैक थे, मीन्स कि लोग भी काफी अच्छे हैं, मतलब सबने ऐसा नहीं था कि लोग ये कह रहे थे कि नहीं आप तो ऐसा 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 कुछ नहीं है। लोगों ने भी अच्छे से अप्रिशिएट किया, हाँ सही ये बात, हम आपके मैसेज को भी सही समझे, और मतलब उनको भी समझ में आया कि एज ए स्टेमरर मतलब किसी को बोलना काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अपने फियर को हाँ। फेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फियर हम्म को फेस नहीं करोगे तो आप ठीक कैसे होगे? एकदम ठीक कह रहे हैं। मेन एक्चुअली चीज वही है। एक्चुअली एवरेज लोग जो है ना, एवरेज पीपल इन इंडिया, गुड पीपल, दे आर गुड। वो कभी हकलाने वालों पे हंसते हम्म। नहीं हैं, वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। असल में हमारे बचपन में जो बुरे अनुभव हुए थे, उन्हीं को हम दिल में लिए बैठे हुए हैं कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया मुझ पे यस यस। हंसेगी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इसीलिए हम लोग हकलाने के बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन दुनिया बदल गई है। हम भी बड़े हो गए हैं, और जो लोग हम पे हंसे थे कभी बचपन में, वो भी आज बड़े हो गए हैं। तो वो लोग भी मैच्योर हैं, हम भी मैच्योर हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, रुद्र प्रताप, दैट यू हैव डन वेरी वेल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर SHG एडवेंचर्स। नाउ लेट मी इनवाइट, थैंक यू सो मच सर। welcome, wonderful. Let me invite Ajay Vyas. Then I'll go to learner Anil. Ajay Vyas. अजय व्यास बोलिए। अजय जी। व्यास, बताइए अपने बारे में जरा, और आपने क्या किया तीसरा में। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय व्यास है, मेरा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अ, मेरी उम्र 24 वर्षीय है, और मैंने अपनी पढ़ाई में BCom करी थी। वेरी गुड अजय। और मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना और बुक रीडिंग करना। ठीक है, ठीक है अजय, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच अजय। आप कोशिश करना, आप चूंकि राजस्थान से हैं, आप कोशिश करना हम्म। जयपुर में जो SHG मीटिंग है उसमें एक बार जाके वहाँ पे थोड़ा सा मजे करने का, जैसे अभी बताया था रुद्र प्रताप ने कि वहाँ पे वो हम्म। लोग बहुत मजे करते हैं, सब हकलाने वाले हैं, आप ही जैसे, हमारे जैसे। और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उनके साथ एक अच्छा वक्त बीतने का बिता सकते हैं। सो ट्राई दैट, जी गो टू जयपुर समडे and have a meeting with them. बिल्कुल Now सर। let me invite learner Anil, and then I will invite Rohit. Anil, बताइए अपने बारे में, और आपने तीसरा में क्या किया अभी तक। हेलो सर। हाँ। मैं टीसा में मैंने अपने फियर को फेस किया है, और अभी मुझे कैसे। बिकॉज ऑफ टीसा सर मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया है। अभी टोस्ट मास्टर में मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेंबरशिप हूँ। हर वीक मेरी एक स्पीच होती है, अलग अलग रोल प्ले करता हूँ, काफी स्मूथली कम्युनिकेट कर पाता हूँ। और कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, बट सब चीज मैनेज हो जाती है। बढ़िया, वेरी गुड अनिल। तो अनिल मुझे ये बताना कि कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, वो कब चैलेंजिंग लगता है कभी कभी। सर मैं एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट संडे सर हमारा एक इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेक्स्ट था, और उसमें 4 पर्सन थे, उसमें एक मैं भी था। तो उस टाइम इतना प्रेशर था जिसके कारण मुझे थोड़ा अपनी स्पीच देने में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई। तो वैसे मोमेंट रहते हैं क्या जहाँ हमें डिफिकल्टी हुई थी, क्या कुछ डिफिकल्टी हुई थी, क्या डिफिकल्टी हुई थी। डिफिकल्टी ये हुई थी सर, मैं अपनी स्पीच का कुछ पार्ट भूल गया था, और हाँ। थोड़े शब्दों पर मुझे पोज लेना पड़ा, और थोड़ी स्टैमरिंग मुझे फील हुई।
hold on. एक मिनट, hold on. तो जब थोड़ी सी स्टैमरिंग हुई थी तब क्या हुआ था? आपको क्या मुश्किल आई थी तब? और अंदर से कैसा लगा था? डर लगा था? संकोच हुआ था? नहीं सर, ऐसा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। बट मेरा ऐसा माइंड सेट था कि ये कंपटीशन मुझे जीतना है। तो वहाँ मेरी स्पीच का जो प्रॉपर ड्यूरेशन था वो 7 मिनट था 5 मिनट। अभी कुछ स्पीच का पार्ट मैं भूल गया। दैट्स व्हाई आई फियर दैट मैं ये स्पीच में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा नेक्स्ट राउंड के लिए। वही फियर था। और ये भी था कि सर इतनी हार्डवर्क करने के बाद भी ये क्यों हुआ। नहीं, एक मिनट, तो एक मिनट, वो एक थोड़ा मिनट। यू यानी आपने आपने स्टैमरिंग शब्द इस्तेमाल किया, तो स्टैमरिंग हुई थी, नहीं हुई थी? सोचिए जरा सा। हुई थी सर। हुई हुई थी। थी सर। होने के बाद आपको कैसा लगा था? थोड़ा गिल्ट सा था। थोड़ा गिल्ट आ रहा था हाँ, बट hold on. Now tell me one thing. Is guilt a helpful emotion for good communication? नो सर। So, does Toastmaster teach you anything specific to deal with guilt born out of stammering? नो सर। Here all Okay, are the hold on, hold good on, hold speaker on, are hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. So, what you're doing in Toastmaster is fine, but you need to do some additional homework. And that additional homework क्या है कि जब right. स्टैमरिंग होती है तब गिल्ट नहीं पैदा होना चाहिए। इसको मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, think of a child. He is very good in mathematics. He is very good in mathematics and mathematics वो आराम से कर लेता है, ठीक। मगर मैथमेटिक्स में एक छोटा सा एरिया है अलजेब्रा का, जहां पे उसको जो है वो a² + b² = a+b⁻², ये वाला फॉर्मूला उसको समझ में नहीं आता। तो उसको जो आसान लगता है वो करता रहता है दिन भर, साल भर, और जो उसको कठिन लगता है उसको वो ट्राई नहीं करता, उससे बचता रहता है। और एग्जाम में चांस की बात है कि वही सवाल आ जाता है जो उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि उसे कठिन लगता है। देन व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटकम? Outcome will be that he will fail. So in the same way, any stammerer, you or Right. me or any of the people who are sitting here, we all speak fine 98% of the words. हमें बोलना तो आता है क्योंकि हम रुकते कभी कभी हैं। We don't stammer on each and every word. We don't stammer on each and every occasion. We don't stammer with each and every person we talk to. But we stammer on just 1% of the words and on 1% of situations. So if you keep on practicing public speaking, you are practicing 90% of the thing which you already know, which is not a problem. So in other words, you really need to focus on the 2% where you actually face problem and which generates guilt. Because guilt is not a good emotion for anything, whether it's public speaking, whether it's creativity, whether it's doing your work or relationship, हर चीज में guilt problem है। So you need to work on this thing. तो public speaking में हम अच्छा बोल सकते हैं by changing words. At one time, I could speak very well, even though I was a stammerer. How? I used to change the words and nobody used to know. But by changing the word, I could fool everybody and anybody, but I could not fool myself. In my heart, I knew that I am a stammerer who is posing as a fluent person. And that generated guilt. That is why I stopped you on guilt, because guilt is a very destructive emotion. And unless we have dealt with it, we have not done our homework. We can join any debate and we can get any number of awards. But end of the day, in our heart, we know that if I stammer, I feel guilty. That should not happen to us or to anybody. So that's all I wanted to say, that everything is wonderful, but don't ignore this 2% thing. This 2% of the words which cause you guilt, you have to do something about it. And the best way of doing about it is confronting it. If a dog is
is charging towards you, if you turn your back and run away from it, the dog will not stop. It will keep on chasing you. If you simply close your eyes, dog will not go away. Dog is still very much there. So therefore, the things which cause us problem, which cause us guilt, have to be confronted face to face. And how to implement it? Very simple. Phone some people and purposely stammer, purposely. That is the thing which will totally desensitize you, which will turn you steel. अभी क्या है, छुई मुई के समान हम लोग हैं. एक शब्द पे हकला जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, छुई मुई की तरह से मुरझा जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं. But if you phone a stranger Right. every second day and purposely say, excuse me, I saw your advert. Is this house on National Highway number 2? If you stammer purposely, have you heard this thing? लोहे को लोहा काटता है. ठीक है. Yes, sir. तो स्टैमरिंग को जो है स्टैमरिंग ही काटेगी. Thank you, sir. Thank you, sir. Giving good speeches Right, will not right, sir. help. Okay, thank you so much. Right. Thank Thank you. Thank you, sir. Welcome. Let me now invite Rohit. Rohit, please tell us what you have done in TISA after joining. Rohit. रोहित, अनम्यूट और बताइए अपने बारे में. हाँ सर, मेरा आज 5वां ही दिन है टीसा ग्रुप में और मैं हरियाणा से रोहतक से बालंद गांव से हूँ, जो एक किसान हूँ. तो रोहित, आपको कुछ प्रॉब्लम है स्पीच में? इससे कुछ मुश्किलें आती हैं आपके काम में, काम धाम में, जिंदगी में? हाँ सर, बहुत मुश्किलें आती है. पहली तो एक आती है जब मेरे पास कॉल आता है या मैं किसी के पास करता हूँ तो हेलो बोलने में बहुत मुश्किल आती है और मैं डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ उनका. ठीक है. हेलो के अलावा कुछ और बोल सकते हैं आप? और क्या? जैसे हाँ. वो हेलो बोलते हैं, मुझे भी बोलना चाहिए, लेकिन ठीक मैं है. उनका नाम ले लेता हूँ, जैसे और सुनील सुना दे ऐसे. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, हेलो, अभी तो आप बहुत अच्छा हेलो बोल रहे हैं. आप थोड़ा हेलो को लंबा सर करिए. हेलो, थोड़ा हेलो को थोड़ा लंबा करके देखिए. लंबा ऐसे, सर हेलो. मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे घर से माँ का, सिस्टर का, वाइफ का कॉल आता है, बड़ी अच्छी तरीके से हेलो बोलता हूँ, रिलैक्स. लेकिन किसी रिश्तेदार का, मेरे साले का और बुआ का आता है हेलो, पर होठ चिपकने और फेस सांस सांस रुक जाती है. मैं समझ सकता हूँ, हाँ ऐसा होता था, मुझे भी होता था एक जमाने में. लेकिन मैंने हेलो की खूब प्रैक्टिस करी. मैंने अजनबियों को खूब फोन लगाया और जानबूझ के मैं पहला वर्ड लंबा करके बोलता था. मैं बोलता था हेलो, हेलो, हाउ आर यू, हेलो, कैन आई टॉक टू अमर सिंह. ऐसे में प्रैक्टिस करता था. तो आप भी, आपके घर में अखबार आता है? हाँ अखबार में आता है. विज्ञापन आते हैं? अखबार में विज्ञापन होते हैं? हाँ अखबार में विज्ञापन किस चीज के होते हैं? आता है विज्ञापन, हाँ, किन किन चीजों के विज्ञापन होते हैं? जैसे, तरह तरह चीजों की. हाँ है ना, कोई कुछ बेच रहा है, कोई मकान किराए पे दे रहा है,
उनमें फोन नंबर होते हैं? हाँ फोन नंबर होते हैं हाँ उनमें? होते हैं। आप रोज सुबह उनको फोन करो और बोलो, हेलो, ये मकान किराए पे कब से उठ रहा है? जरा बोल के दिखाना, जरा जरा बोलना, ऐसे एक्टिंग करना। हेलो, ये मकान किराए पर उठ रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी कॉल करना है। हेलो, साइंस की ट्यूशन पढ़ाते हो आप? हेलो, साइंस की ट्यूशन पढ़ाते हो आप? बहुत बढ़िया, यही करना है। कल सुबह से आप 2 कॉल करो, विज्ञापन में से किसी भी लोगों को 2 कॉल करो और हेलो जरूर बोलो। और हेलो अगर एक बार में ना बोल पाओ तो 2 बार में बोलना, ऐसे देखना। है, है, हेलो, साइंस की ट्यूशन पढ़ाते हो आप? जरूर सर, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना, आप एकदम अच्छा बोलेंगे, आप चिंता मत करिए, आप जरूर अच्छा बोलेंगे। तो इस समय खेतों में क्या पैदा हो रहा है आपके? खेतों में अभी तो सरसों और गेहूं उगा रखे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खेत बड़े सुंदर लग रहे होंगे, हाँ, हरे भरे। हाँ, अच्छा, ठीक, हरे भरे। ठीक। अच्छा, चलिए, तो ऐसा है कि टाइम अब होने वाला है, 9 बज रहे हैं, मैं बंद करना चाहता हूँ मीटिंग को, क्योंकि और भी काम करने हैं। तो जाने के पहले कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो एक आदमी कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, मैं उसको मौका दूंगा जरूर, बिफोर। जी सर, हाँ बोलिए मैं मंजीत, हाँ बोलिए। क्या हाँ बोलिए, बोलिए। कहता हूँ, हाँ, मनजीत सिंह। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे हमको ब्लॉक्स आते हैं, हाँ। जैसे हमको आर पर आता है सर, हम्म। इसको हम ठीक करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करें सर? एक तो आपको फोन पे अजनबियों के साथ फोन पे प्रैक्टिस करना चाहिए। अखबार में विज्ञापन ले लीजिए, किन्हीं भी 2 फोनों को आप सुबह सुबह फोन मिलाइए, और ज्यादा नहीं बल्कि एक ही लाइन में बात करिए, और उस एक लाइन में जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है उसके ऊपर वो टेक्निक यूज करने का आप मन बना लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको गुड मॉर्निंग बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप पहले से मन बना लो कि मैं इस पहले विज्ञापन वाले नंबर पे कॉल करूंगा और जानबूझ के गुड मॉर्निंग पे बाउंसिंग करूंगा। चाहो तो अपने सामने कागज के ऊपर लिख लो, एक कागज के ऊपर लिख के, तो उसको देख के बोलो, गुड मॉर्निंग, ये विज्ञापन आपका है। बस वो जो भी जवाब दे, थैंक यू बोल के फोन काट दो। एक कॉल हो गई, फिर दूसरी कॉल उठा लो, उसके बाद उसमें भी वही करो कि ग ग गुड मॉर्निंग, ये विज्ञापन जो आपका है घर के बारे में, इसका किराया कितना है? वो बोलेगा 10,000 या जो भी बोलता है, थैंक यू बोलो, फोन काट दो। इस 2 कॉल में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट। तो दिन में सिर्फ 10 मिनट अगर आप दे दोगे तो आपकी टेक्निक की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। अगर आप स्विमिंग रोज करोगे तभी अच्छे स्विमर बन पाओगे। अगर आप सिर्फ स्विमिंग के बारे में किताबें पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मंजीत, आप समझ रहे हैं? हाँ जी जी सर, म- मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ, आप और लोग आप हाँ, लोग का फायरिंग करने कितनी बार जाते हो फायरिंग करने आप लोग साल में? हम सर महीने में 2 बार चले जाते हैं प्लानिंग करने के लिए। हाँ, मैं आईटीबीपी में था, मैं डॉक्टर था आईटीबीपी में, मैं साल में एक बार करने जाता था ठीक फायरिंग। ठीक 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 है सर। तो अब आप सोच लो कि हमारे साथ सर आईटीबीपी, मेरी फायरिंग, हाँ, अब आप सोचो कि मेरी फायरिंग अच्छी होगी या आपकी फायरिंग अच्छी होगी। हाँ हाँ, वो तो सर प्रैक्टिस के ऊपर अभी होता की, है ना सर। हाँ, प्रैक्टिस होता है ना, आपकी अच्छी होगी, मेरी मैं हाँ, साल में एक बार करता तो मेरी कैसे अच्छी होगी। तो वही हाँ चीज जी, हाँ जी, टेक्निक के साथ भी, अगर आप टेक्निक की प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आप, हाँ मैं जी, यकीन से कह सकता हूँ कि 3 महीने में आपकी स्पीच बहुत बदल जाएगी। ठीक है सर। ठीक सर है, तो जो भी आपको आईटीबीपी में, हाँ, हाँ जी हाँ। सर, आईटीबीपी में मुझको 2 बार उनके साथ मर के नौकरी करने का मौका मिला। एक तो अच्छा, मुझको अच्छा। पिथौरागढ़ में मिला, हाँ, और हाँ, एक हाँ, मुझको मिर्थी ऊपर, मिर्थी में, हाँ, सिक्किम के बॉर्डर मिर्थी, के ऊपर मिला सर। हाँ, 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 आईटीबीपी में मैंने बहुत लंबा समय लाचुंग काम नहीं सर, किया हाँ मैं। जी। हाँ, हाँ, लेकिन
मैंने आईटीबीपी में सब कुछ किया था, फायरिंग भी करी, ग्लेशियर पे चढ़े, पहाड़ पे जी पे चढ़ाई करी। ठीक सर। बहुत मजे किए, बड़ा अच्छा वक्त हाँ जी बिताया आईटीबीपी में। लेकिन वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो जो भी आपको जी मुश्किल शब्द लगते हैं उनको लिख लो पेपर पे, एक कागज पे लिख लो, और जी और विज्ञापन वाले के नंबर लेके उनको फोन करो, और जानबूझ के वो लफ्ज उसमें इस्तेमाल करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको आर वाले वर्ड बोलना मुश्किल लगता है, ठीक है? जी सर। तो जैसे आर से वर्ड होता है, जैसे आर से रविंद्र होता है, तो आप अपना नाम रविंद्र मान लो कुछ देर के लिए और फोन करो और बोलो, हेलो, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, ये घर का किराया कितना है जिसका विज्ञापन दिया आपने? ठीक है, वो आदमी बोलेगा ठीक 8,000 10,000 जो भी है, आप थैंक यू बोल के फोन काट दो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है सर। ठीक है, ये हाँ करिए, आप कर थैंक यू। सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मनीष, आपको मैं मौका जरूर दूंगा, आपको मैंने मौका नहीं दिया, बोलिए मनीष, उसके बाद फिर हम मीटिंग बंद करेंगे। ओवर टू मनीष देव। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरी एक क्वेरी थी। मैंने एक दो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन कई बार जब बोलना जरूरी है तब तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे बोलना ही है। लेकिन जब वे कहते हैं कि किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है किसी की, तब काफी लोगों के बीच में खड़े होकर कोई क्वेरी करने में काफी डर लगता है, तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ काफी बार। तो यहाँ पे तो इस दो दो तरीके हैं, मैं इसका सवाल का जवाब दे देता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। पहली बात तो कि क्वेरी क्या पूछना है, कई बार उस समय हम फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं अपने विचारों को। तो जब प्रेजेंटेशन चल रहा है उसी वक्त अगर आप पेपर पे लिख लें कि मुझे ये सवाल पूछना है, तो उठ के आप वो सवाल पढ़ के भी पूछ सकते हैं। मगर उसके पहले आप दूसरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आसान काम से आपको शुरुआत करनी चाहिए। आसान काम ये है कि जब भी कोई इसी मीटिंग में आप हिस्सा लेते हैं, तो आप भले सवाल ना पूछें, मगर आखिर में हाथ खड़ा करके जब वो बोले कि हाँ यस व्हाट यू वांट टू से, तो आप बोलिए, सर आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, बस। ये करने से क्या होगा कि आपको क्लास में ठीक है, खड़े होकर दो शब्द बोलने की आदत पड़ ठीक जाएगी। है, उसके बाद फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सवाल लिखना, पहले लिख के पढ़ के पूछना कि आप, यानी पहले पूछना, एक्सक्यूज मी, मैं आस्क ए क्वेश्चन, वो बोलेंगे यस, तो खड़े होना और अपना पेपर देखते हुए सवाल पढ़ देना, बस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक आगे है। समझ में मनीष, कर पाएंगे ये? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल। हाँ करिएगा और बताइएगा कैसा रहा। ओके गैस, सो लेट मी कल ही वाइंड अप एक द मीटिंग मीटिंग। है मेरी। हाँ हाँ, आप मीटिंग में हिस्सा लीजिए और फिर बातें बताइएगा कि कैसा रहा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू रुद्र, थैंक यू सुनील, रोहित, थैंक यू सर, अनिल, थैंक यू। ठीक है रघुवीर, सर। राजा डे, मंजीत, थैंक यू सो मच सर जी। सुशील, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।